Hello everyone, welcome you all at the YouTube channel Botany for All. In our today's video, we are going to discuss about an angiosperm family that is Brassicaceae, which is also called Cruciferae or the family of mustard. Earlier, only the floral diagram was mentioned in the NCERT, but as per the new NTA syllabus for NEET, we have to study the complete family or the description of this family also. So let's just start with the Brassicaceae or the Cruciferae. This family is also called Cruciferae. Why? Because इसमें जो petals होते हैं, the arrangement of petals is like crucifixion, the shape of crucifixion, जिसको जनरली सूली पे चढ़ाना बोलते हैं ना, the Jesus Christ. So crucifixion की तरह इसके जो petals हैं उसकी shape है. There are total 4 petals. They are in velvet estivation. सारे free होते हैं आपस में. So due to this shape of petals, it is also called cruciferae. कुछ important members यहाँ पे मैं लिख देता हूँ first of all, so that you can recognize that what are some members of the Brassicaceae. The most one important is Brassica campestris. Brassica campestris. This is a small c. It is generally called mustard or the सरसों. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर है इसका ब्रासिकेसी का वो है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस मस्टर्ड. इसके अलावा वेजिटेबल्स लाइक गोभी, ब्रासिका ओलेरेसिया and Brassica botrytis as well. Both type of the cauliflower as well as the cabbage, band gobi and fool gobi. Both of the gobi are in Brassicaceae. Another one is Muli, Raphanus sativus. And some other members as well like shalgam, the turnip. So basically most of the members are vegetables, and the most important one is mustard, sarso, Brassica campestris. It is a kind of type genus for this family, Brassicaceae, the Brassica campestris. So all the floral features or the vegetative feature that we are discussing, we will mainly focus on the mustard. There is one plant also, Iberis amara, which is ornamental, which is also called candy tuft. So these are some important members. Let's just start with the vegetative and floral description of the family Brassicaceae, taking the reference of mustard or the sarson, which is a common crop in North India. So let's just start with the vegetative description first. What are the floral terms? What is flower? And the other morphological details that you can refer in the another video. For the family Fabaceae, I have given the link in the description. So in the vegetative description, basically we write root, stem and leaf. These are 3 main important vegetative organs. Okay, so root is basically taproot, since it is a family of diacot, so that I should mention that it is a family of diacots. डायकॉट में जो रूट सिस्टम होता है वो होता है टैप रूट सिस्टम. कभी कभी कुछ रूट्स जो है स्टोरेज फॉर्म में भी हो सकती हैं, लाइक रेफेनस सेटिवस. मूली में जो एडिबल पार्ट है जिसको हम मूली कहते हैं एक्चुअली में, दैट इज एडिबल रूट और स्टोरेज रूट. तो ब्रासिका में तो ऐसा नहीं है, बट वी कैन मेंशन इन द फैमिली दैट इट आल्सो हैव अ स्टोरेज रूट, स्पेशली इन टर्निप एंड रेफेनस सेटिवस, दैट इज मूली. Let's just talk about the stem. Stem is reduced in Raphanus sativus again. मूली में stem reduced हो सकता है, but सरसों में, mustard में stem is not reduced. It is erect, although not woody. And mustard is annual. The life cycle of mustard is 1 year. If you talk about the leaf, leaves will have reticulate venation, since it is a family of diacots, so venation will be reticulate. In monocots, the venation is parallel, but in diacots the venation is reticulate. So this is all about the vegetative morphology. Now let's move to the point, that is floral description, which is the most important for any angiosperm family, because floral descriptions are the basis that differentiate between the various kinds of the angiosperm family. So if we talk about the floral description, first we write the inflorescence. Inflorescence means the arrangement of flowers on the stem or the cluster of flowers. So inflorescence is racemose, but a special type of racemose, which is called Corium raceme.
रेसिमोज अनलिमिटेड इन्फ्लोरेसेंस को कहते हैं, जिसमें फ्लोरल एक्सिस जैसे कहते हैं पेडेंकल, फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड पेडेंकल। पेडेंकल पे एक्रोपिटल मींस द ओल्ड फ्लावर्स एट द बेस, दिस इज द ओल्ड वन, दिस इज द न्यूवर, दिस इज द अगेन न्यूवर एंड द न्यूएस्ट। सो ये अनलिमिटेड इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें एक ही पेडेंकल पर फ्लावर आए जा रहे हैं। तो ये तो एक टिपिकल रेसिमी है, बट यहाँ क्या है स्पेशल है, कोरियम। इट मीन्स ऊपर जाके सभी फ्लावर्स का सेम लेवल है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो फ्लावर का स्टॉक यानी पेडिसल, पेडिसल अभी भी रेसिमोज अरेंजमेंट में, दिस इज द ओल्ड पेडिसल, दिस इज द न्यूअर, दिस इज द न्यू वन एंड दिस इज द न्यूएस्ट, बट फ्लावर्स का लेवल जो है वो सेम है, काइंड ऑफ अम्बल की तरह। हालांकि अम्बल में सारे पेडिसल एक ही पॉइंट पे होते हैं, अम्बल इन्फ्लोरेसेंस लाइक दिस। अम्बल नहीं है, ये कोरियम रेसिमी है, एक मिली जुली रेसिमोज का ही टाइप है, बट इसे कहते हैं कोरियम रेसिमी। इट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉर मस्टर्ड। तो बात है इन्फ्लोरेसेंस की। नेक्स्ट वन हम फ्लावर्स के फीचर लिखते हैं। मस्टर्ड के अगर फ्लावर की मैं बात करूँ तो फ्लावर होता है कंप्लीट, चारों होल प्रेजेंट होते हैं, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। उसके अलावा वो हर्मोफोडाइट या बाइसेक्सुअल, उसके लिए हम लिखते हैं। अब क्योंकि फ्लावर कंप्लीट है तो ऑफकोर्स बाइसेक्सुअल होगा, यानी एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों उसमें प्रेजेंट है। सिमेट्री की बात करें तो मस्टर्ड का जो फ्लावर है उसमें कुछ इस तरह से 4 पेटल्स होते हैं। ओके, तो इसको 2 इक्वल हाफ्स में कट करने के लिए 1, 2, इवन मोर देन 2, बहुत से एक्सिस ऐसे हैं जिनसे आप, या बहुत से ऐसे प्लेन है जिनसे आप इसको कट करेंगे तो ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, तो ये कहलाएगी रेडियल सिमेट्री। इसके लिए फ्लावर को हम लिखते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, एक्टिनोमॉर्फिक। डायाकोट्स में जो फ्लावर होते हैं उनके होल, कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोशियम या तो 4 के मल्टीपल में होते हैं या 5 के मल्टीपल में। अगर 5 के मल्टीपल में तो फ्लावर कहा जाता है पेंटामेरस, और 4 के मल्टीपल में है तो टेट्रामेरस। तो इसकी जो खासियत है ब्रासिकेसी की, इसमें कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोशियम जनरली 4 के मल्टीपल में। ओके, तो मतलब जो एंड्रोशियम है ऑल्दो दे आर 6 बट स्टिल 4 आर लार्जर एंड 2 आर स्मॉलर, तो ये टेट्रामेरस फ्लावर कहलाता है। कैलेक्स और कोरोला मेनली इसमें 4 हैं, 4 के मल्टीपल में। दीज आर द फीचर्स ऑफ फ्लावर। ओवरी इसमें सुपीरियर होती है, तो जब जब ओवरी सुपीरियर होती है फ्लावर को हम कहते हैं हाइपोगाइनस। So in the sequence of floral description, first we write the inflorescence, which is Coriamber raceme, and next we write the flower. These are some features of the flower. Now we will talk about the calyx. The unit of calyx is sepal. So there are total 4 sepals, as I have mentioned earlier. Although I have mentioned about the petals, but here I am talking about the sepals. Sepals are also 4. 2 sepals are exterior and 2 are interior, like this. Suppose this is 1 sepal, this is 2 sepal, 2 are outer in a single hole and 2 are inner. 1, 2, these 2 are outer, and 3 and 4 these are inner. So sepals are free. Whenever the sepals are free, it is called polysepalous. If they will be fused, we will write gamo, but since they are free, so I have written the polysepalous, poly word. तो sepal जब भी free होते हैं हम लिखते हैं poly. Let's just talk about the corolla now. Next whole, corolla. Corolla की यूनिट होती है petal. There are total 4 petals which are arranged in cruciform form. Okay, like this. 1 petal, 2 petal, 3 petal and 4 petal. जब भी पेटल्स की बात होती है तो पेटल्स की अरेंजमेंट को हम कहते हैं एस्टिवेशन। तो फर्स्ट ऑफ थिंग कि यहाँ पेटल्स आपस में फ्यूज नहीं है। जब भी फ्यूज नहीं है, फ्री है, तो हम लिखते हैं पॉली, फिर इस बार लिखेंगे पेटलस। पॉलीपेटलस कंडीशन है, 4 पेटल हैं, क्रूसीफॉर्म फॉर्म में अरेंज है। क्रूसीफॉर्म अगेन आई एम टेलिंग लाइक दिस, द सिंबल ऑफ क्रूसीफिक्शन। ओके, एंड कोरोला की एस्टिवेशन, पेटल्स की जो एस्टिवेशन है सरसों में वो होती है ओपन या वेलवेट। ओके, फ्लोरल टर्म्स में भी आप इन सब चीज़ों को देख सकते हो, यहाँ भी मैं पर्टिकुलर को तो मेंशन कर ही रहा हूँ। वेलवेट का मतलब होता है जब पेटल्स आपस में फ्यूज ना हो, मतलब ओवरलैप ना हो। ठीक है, एक पेटल दूसरे पेटल के साथ बिल्कुल भी ओवरलैप्ड नहीं है। ऐसा आपको मस्टर्ड में के अलावा सदाबहार, विंका रोजिया द साइंटिफिक नेम, सदाबहार में और कैलोट्रोपिस जिसे आक कहा जाता है, मदार, तो आक में, मस्टर्ड में और जो है आपके विंका रोजिया, सदाबहार में आपको यही एस्टिवेशन मिलेगी। करंटली वी आर डिस्कसिंग सरसों, ब्रासिका कैम्पसिट्रिस, सो उसमें जो एस्टिवेशन है वो वेलवेट है।
This is about the corolla. Now let's move to the androecium. एंड्रोशियम दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो एंड्रोशियम जो होता है ना, उसका जो यूनिट है वो है स्टेमन. स्टेमन होते हैं टोटल 6, 4 + 2. 4 जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और 2 जो हैं वो शॉर्ट हैं. लॉन्ग वाले एक्सटर्नल होते हैं और जो शॉर्ट हैं वो इंटरनल अंदर की तरफ होते हैं. तो कुछ इस तरह से एंड्रोशियम है. 1, 2, 3, 4 एंड दीज 2 इंटरनल. इस स्पेशल केस को जहां पर 4 बड़े और 2 छोटे स्टेमन होते हैं, इस केस को कहा जाता है टेट्राडाइनमस. टेट्रा यानी 4, डायनमस यानी लॉन्ग. तो यहां पर 4 लॉन्ग पेटल हैं, 2 शॉर्ट पेटल हैं. एक और केस आता है आउट ऑफ दिस फैमिली में बता रहा हूं, उसमें 2 लॉन्ग और 2 शॉर्ट होते हैं. इसे कहा जाता है डाइडाइनमस. डाइडाइनमस. इसका एग्जांपल होती है लैमिएसी फैमिली, जिसमें मेनली तुलसी, होली बेसिल और सेल्विया नाम के 2 पौधे आते हैं. ऑल्दो एनटी के सिलेबस में ये फैमिली है नहीं लैमिएसी, बट स्टिल आई एम टेलिंग द एग्जांपल्स बिकॉज एनसीईआरटी में लाइन है कि स्टेमन्स में बी ऑफ डिफरेंट लेंथ. तो फिर हम दोनों कंसिडर करेंगे उसके अकॉर्डिंग. एक तो ब्रासिकेसी फैमिली में जहाँ 4 बड़े और 2 छोटे होते हैं, इसे कहा जाता है टेट्राडाइनमस कंडीशन. 4 बड़े. डाइडाइनमस कंडीशन में 2 बड़े और 2 छोटे स्टेमन होते हैं, 2 लॉन्ग 2 शॉर्ट. उसका एग्जांपल है तुलसी साल्विया, द फैमिली लैमिएसी. ये भी हम याद रख सकते हैं, लैमिएसी. सो which is the number of stamen actually? It is the 6. 4 are long. How many are long? 4. And how many are short? 2. If we talk about the adelphous condition, in the mustard, the androecium differentiate from different regions, originate from different regions. So stamens are polyadelphous. पॉलीएडेल्फस में मेनली एनसीईआरटी में सिट्रस का एग्जांपल चलता है, बट स्टिल मस्टर्ड में भी हम याद रख सकते हैं पॉलीएडेल्फस है, यानी कि स्टेमन अलग अलग जगह से निकलते हैं, उनका जो ओरिजिन पॉइंट है वो अलग अलग है. सो दिस इज अबाउट द एंड्रोशियम. नाउ जस्ट मूव टू द गाइनोशियम, द लास्ट होल. गाइनोशियम की जो यूनिट होती है वो पिस्टिल होती है, बट उसको रिप्रेजेंट करते हैं कार्पल से. ओके. although they are kind of a synonym as per the NCERT, although there are some difference. जैसे कार्पल जो है ना, वो ओवरी के अंदर ओव्यूल कंटेनिंग चैम्बर्स को बोला जाता है इन रियली, कि ओवरी में चैम्बर्स कितने, जिन्हें हम लॉक्यूल्स भी कहते हैं, लाइक दीज आर 2 लॉक्यूल्स 1 and 2. इफ दे कंटेन ओव्यूल ऑल्सो दे विल बी कॉल्ड कार्पल. एंड पिस्टिल जनरली कहा जाता है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को. तो पिस्टिल या कार्पल, क्योंकि मेंशन नंबर कार्पल का ही किया जाता है जब भी हम गाइनोशियम फ्लोरल फॉर्मूला में लिखते हैं G2, इसका मतलब 2 कार्पल हैं. ओके. इसके बारे में डिटेल में देखना है तो फ्लोरल टर्म्स में जाके और गाइनोशियम के को आप अच्छे से उसको स्टडी करें, देन यू विल नो कि कार्पल और पिस्टिल में क्या डिफरेंस है. बट स्टिल इनको जनरली जो है एक ही वे में यूज़ किया जाता है. तो गाइनोशियम में पिस्टिल की जगह पे हम कार्पल का नंबर लिखते हैं. तो जो ओवरी है, बेसिकली जो ओवरी है मस्टर्ड की, वो भी एक अपने अंदर एक स्पेशलिटी रखती है कि पहले ओवरी, अर्लियर टाइम्स में जो ओवरी थी, ओवरी में होंगे ओव्यूल्स. ओव्यूल्स जिस टिश्यू पे बोर्न होते हैं उसे हम कहते हैं प्लेसेंटा. तो ये रेड कलर से मैं दिखा रहा हूं प्लेसेंटा. ओके, दिस इज ओवरी. और ब्लू कलर से या ग्रीन कलर से मैं यहां पे दिखा रहा हूं ओव्यूल्स. तो कुछ इस तरह से ओव्यूल थे. दीज आर 2 ओव्यूल्स. दीज आर ऑल्सो 2 ओव्यूल्स. दी ओव्यूल्स, ओव्यूल्स एंड ओव्यूल्स. ओके, 5 into 2 10 ओव्यूल मैंने टोटल दिखाए हैं. देखो, ओव्यूल जो है ना वो प्लेसेंटा पर उगते हैं, और प्लेसेंटा की अरेंजमेंट को हम कहते हैं प्लेसेंटेशन. ओके, प्लेसेंटा की अरेंजमेंट को प्लेसेंटेशन. तो राइट नाउ जो प्लेसेंटा है वो पूरी पेरीफेरी पे है. तो यहाँ जो प्लेसेंटेशन होगी ना सरसों में, प्लेसेंटेशन, वो कहलाती है पेराइटल, क्योंकि प्लेसेंटा पेरीफेरी पे है और उस पे ओव्यूल है. अब यूजुअली होता क्या है कि पेराइटल प्लेसेंटेशन आपको यूनिलॉक्यूलर ओवरी में मिलेगी. ऐसी ओवरी जिसमें एक ही चैम्बर हो अंदर. अगर चैम्बर 2, 1, 2 या 2 से ज़्यादा, लाइक 3, अगर चैम्बर 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं तो कार्पल्स का जो कॉमन फ्यूजन पॉइंट है वहाँ पर एक एक्सिस बन जाता है, और एक्सिस पे ओव्यूल्स होते हैं. हमेशा प्लेसेंटेशन आपको एक्साइल मिलेगी. जब जब ओवरी बाइलॉक्यूलर, ट्राइलॉक्यूलर, टेट्रालॉक्यूलर, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लॉक्यूल्स या कार्पल्स अगर ओवरी में होते हैं तो प्लेसेंटेशन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक्साइल मिलेगी.
क्यों? क्योंकि एक एक्सिस बन जाता है। लेकिन मस्टर्ड इसका एक्सेप्शन है। मस्टर्ड में क्या होता है कि उसकी ओवरी में एक फॉल्स सेप्टम, सूडो सेप्टम, सूडो स्टैंड्स फॉर फॉल्स, एक फॉल्स सेप्टम, एक चैम्बर, एक सेक्शन बन जाता है, झूठा सेक्शन। देखिए मैं बना के दिखाता हूं ब्लू कलर से, इस तरह से। इस फॉल्स सेप्टम के कारण अब हमें क्या लगता है कि इस ओवरी में 2 चैम्बर हो गए, 1 and 2। ओके, तो इस ओवरी को ना अब क्योंकि 2 चैम्बर हो गए तो लिखा जाता है बाई लॉक्यूलर या बाई कार्पलरी। तो ओवरी है तो बाई कार्पलरी, और अभी मैंने आपको क्या बताया कि 2 कार्पल या 2 से ज्यादा होने पर प्लेसेंटेशन को पेराइटल एक्साइल होना चाहिए, लेकिन यहां पर प्लेसेंटेशन पेराइटल ही होगी। मस्टर्ड की प्लेसेंटेशन पेराइटल है। क्यों? क्योंकि ये जो सेप्टम बन गया है ये रियल नहीं है, ये सूडो है, और इस सूडो सेप्टम को कहा जाता है रेप्लम। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है, रेप्लम क्या होता है? रेप्लम एक फॉल्स सेप्टम होता है इन दी ओवरी ऑफ मस्टर्ड, मस्टर्ड की ओवरी में। और इस फॉल्स सेप्टम को यानी रेप्लम को, इसकी वजह से जो प्लेसेंटेशन है वो एक्साइल नहीं हुई, वो पेराइटल ही रह गई। तो सोचो अगर ये नहीं होता, अगर ये यहाँ पर नहीं होता, तब तो प्लेसेंटेशन पेराइटल में हमें समझने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी कि पेराइटल प्लेसेंटेशन है। लेकिन इसके होते हुए भी, ओवरी बाइलॉक्यूलर होते हुए भी प्लेसेंटेशन एक्साइल क्यों नहीं है? क्योंकि ये सेप्टम फॉल्स है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी ओवरी में। ओवरी के बारे में अगर हम लिखेंगे तो कार्पल 2 हो गए, बाई कार्पलरी ओवरी है, चैम्बर्स 2 हैं, बाइलॉक्यूलर ओवरी है। ओवरी में प्लेसेंटेशन लिखी जाती है वो पेराइटल है, पेरीफेरी पर प्लेसेंटा है। ठीक है, ओव्यूल्स बहुत सारे हैं, मैनी ओव्यूल्स इन वन ओवरी। कभी कभी देखिएगा एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है, जैसे मैंगो की ओवरी में, मैंगो में एक ही सीड इसलिए बनता है, ओवरी फ्रूट बनी, ओव्यूल सीड बना, तो एक फ्रूट एक सीड, एक ओवरी एक ओव्यूल। व्हीट में भी, गेहूं में भी ऐसा ही होता है, 1 ओवरी 1 ओव्यूल। तो यहाँ पे जो है ना एक ओवरी में काफी सारे ओव्यूल्स हैं। ये गाइनोशियम के बारे में था। अब देखो दोनों कार्पल्स जो है ना 1 and 2, क्योंकि ये बाई कार्पलरी है, दोनों इस कॉमन पॉइंट पर फॉल्स सेप्टम पर आकर फ्यूज हैं, और जब भी कार्पल्स फ्यूज होते हैं तो वो कंडीशन लिखी जाती है सिनकार्पस। ओवरी में एक और पॉइंट है सिनकार्पस, कार्पल्स फ्यूज। अगर कार्पल्स फ्री होते तो लिखा जाता है एपोकार्पस, बट यहाँ पर कार्पल्स फ्यूज हैं तो यहाँ लिखा जाएगा सिनकार्पस। सो ये था फ्लोरल डिस्क्रिप्शन के बारे में, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। गाइनोशियम में इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कौन सा? सूडोसेप्टम, जिसे हम रेप्लम कहते हैं। ये केवल और केवल मस्टर्ड में आपको देखने को मिलेगा। मस्टर्ड के फ्रूट को सिलिकुआ कहते हैं। टाइप ऑफ फ्रूट में जाके आप फ्रूट्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ सकते हो। यहाँ पर केवल डिस्क्रिप्शन की मैं बात कर रहा हूँ फैमिली की, तो पर्टिकुलर इस फैमिली में सिलिकुआ टाइप का आपको फ्रूट मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब आते हैं मेन पर, फ्लोरल फार्मूला पर। अब क्योंकि हमें फीचर्स पता है तो हम इजीली जो है फार्मूला लिख सकते हैं। फ्लोरल फार्मूला जब भी हम लिखते हैं तो उसमें फ्लावर की कुछ फीचर्स हम मेंशन करते हैं। यहाँ पर एक फीचर और मैं लिख रहा हूँ, ई ब्रैक्टिएट। फ्लावर के पेडिसल, फ्लावर के पेडिसल के एक्सिस में ना एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, कभी कभी इसे कहा जाता है ब्रेक्ट। अगर ये है तो फ्लावर ब्रैक्टिएट है, और अगर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट इज ब्रेक्ट नहीं है तो फ्लावर ई ब्रैक्टिएट है। तो ई ब्रैक्टिएट के केस में या तो हम मेंशन ना करें बी आर को, क्योंकि ब्रैक्टिएट के लिए बी आर लिखा जाता है और ई ब्रैक्टिएट के लिए ई बी आर। तो या तो हम ई बी आर लिखें, या हम बी आर नहीं भी लिख रहे तो अपने आप अंडरस्टूड है कि ये ई ब्रैक्टिएट है। तो क्योंकि फ्लावर्स ई ब्रैक्टिएट होते हैं तो मैं यहाँ पर ई बी आर भी लिख सकता हूँ, या चाहे तो हम बी आर को ना मेंशन करें। अगर ब्रैक्टिएट है तो बी आर लिखना होता है। तो सबसे पहले सिमेट्री को लिखा जाता है। सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री का सिंबल है। फिर सेक्सुअलिटी, क्योंकि बाइसेक्सुअल है तो फीमेल एंड मेल, ये हार्मोफोडाइट का सिंबल है। ई बी आर है तो आप चाहो तो सामने ई बी आर लिख सकते हो या नहीं भी, अगेन आई एम टेलिंग कि आप लिख भी सकते हो नहीं भी ई बी आर। उसके बाद जो है ना सबसे पहला होरल, दैट इज कैलेक्स। कैलेक्स का सिंबल होता है के। टोटल 4 सेपल थे, मैं याद दिला देता हूं आपको। चारों सेपल एक जैसे नहीं थे, 2 बाहर की तरफ थे 1 and 2, और 2 अंदर की तरफ थी एंड 4। तो उसके लिए मैं 2+2 लिखूंगा, ना कि सीधा 4। 2 आउटर 2 इनर, कोई भी आपस में फ्यूज नहीं है तो हमने सीधा लिखा K2+2। उसके बाद पेटल्स, पेटल्स चारों एक जैसे थे, चारों आपस में फ्यूज नहीं थे तो ब्रैकेट नहीं लगेगा। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम में स्टेमन थे 6, 4 बड़े और 2 छोटे, हालांकि वो भी आपस में फ्यूज नहीं थे, पॉलीएडेल्फस कंडीशन थी, कहीं भी ब्रैकेट नहीं लगेगा। गाइनोशियम में कार्पल 2 हैं, G2। कार्पल आप ध्यान से देखोगे तो दोनों फ्यूज हैं, हमने सिनकार्पस लिखा भी है। तो जब भी कोई चीज फ्यूज होती है तो हम उसके ब्रैकेट लगाते हैं। ओवरी सुपीरियर है, आप अच्छी तरह से जानते हो, जब भी ओवरी सुपीरियर होती है
तो ये डैश या अंडरलाइन जो हमें नीचे नहीं ऊपर करते हैं। अगर ओवरी इंफीरियर होती तो हम इसको नीचे करते हैं। वेट, पार्डन, लिसन अगेन। अगर ओवरी सुपीरियर है तो नीचे अंडरलाइन करते हैं, सुपीरियर है तो, और इंफीरियर है तो ऊपर अंडरलाइन करते हैं। तो क्योंकि ओवरी सुपीरियर है, पार्डन, तो मैं इसको नीचे अंडरलाइन करूंगा। ओवरी इज सुपीरियर, इसलिए हमने अंडरलाइन किया इसको नीचे, ओवरी इज सुपीरियर। तो ये फ्लोरल फॉर्मूला है। इसके अलावा इनमें कोई किसी तरह का क्वेश्चन एडिशन नहीं है कि भाई जो है ना पेटल्स के साथ स्टेमन अटैच हो, जैसे कि एपीपेटल्स कंडीशन होती थी, या पेरियंथ है तो पी लिखें, ऐसा कोई स्पेशल केस नहीं है। ये ब्रासिकेसी का फ्लोरल फार्मूला है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन अगर मैं बात करूँ, पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन जो मेन इसके पॉइंट है इस फैमिली के, तो वो है आपके एक तो रेपलम होना, फॉल्स सेप्टम, एक टेट्राडाइनमस कंडीशन, टेट्राडाइनमस का मतलब 4 लॉन्ग एंड 2 शॉर्ट स्टेमन। ओके, इसके अलावा क्रूसीफॉर्म पेटल्स, इसीलिए इसको क्रूसीफेरी भी कहा जाता है ब्रासिकेसी फैमिली को। और जो है बस ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। जो पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन है यूनिक पॉइंट है। अब बात करते हैं फ्लोरल डायग्राम की। फ्लोरल डायग्राम क्योंकि हम नीट में तो डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन आना है, तो आपको केवल रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, ठीक है। फिर भी हम लोग, मैं आपको बना के दिखाता हूं एक बार। ऐसे आर्क के जैसा ना स्ट्रक्चर बनाया जाता है, एक आर्क, और ऐसे डोम लाइक। ये कैलेक्स को रिप्रेजेंट करता है। इसको फिल नहीं करेंगे। 1 कैलेक्स, 2 कैलेक्स, ये दोनों आउटर कैलेक्स हैं। उसके बाद 2 और कैलेक्स दिखाएंगे हम, सेपल्स, ये 2 इनर हॉर्ल में है। तो चारों एक ही हॉर्ल में नहीं है, इसलिए हम लोग 2+2 लिखते थे, ठीक है। फिर हम दिखाएंगे पेटल्स को। पेटल्स एक ही जैसे हैं, एक ही हॉर्ल में है। हॉर्ल का मतलब सर्कल में, तो कुछ इस तरह से। इसमें आउटर इनर नहीं है, चारों बराबर हॉर्ल में। वेलवेट एस्टिवेशन आपस में टच नहीं है कहीं भी, तो हम लोग भी इनको अटैच नहीं दिखाएंगे। जब भी टच होते हैं तो हम लोग ओवरलैपिंग दिखाते हैं। कंसर्न फैमिलीज में आप लोग पढ़ते रहते हैं, जैसे फैबिएसी में वो मर्ज थे तो हमने दिखाया था उनको 2 को। ये पेटल हो गए। अब बात करते हैं स्टेमन की। स्टेमन याद कीजिए 4 and 2, 4 आउटर 2 इनर। तो स्टेमन के लिए कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है बायोधिकस का। 1 2 3 4 2, इधर दिखा देते हैं 1 and 2, तो 4+2। उसके बाद सेंटर में टीएस ऑफ ओवरी दिखाया जाता है। टीएस ऑफ ओवरी का मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन, ऊपर से कट करके, ना कि लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल में 2 टुकड़े होंगे, तो ओवरी कुछ इस तरह से कट होगी। लाइक मटर के एग्जाम्पल से बताता हूँ। मटर में अगर आप लोग एलएस काटोगे तो आपको सारे सीड्स दिखेंगे। अगर आप टीएस काटोगे ऊपर से तो कोई एक ही सीड दिखेगा। सिमिलरली अब यहाँ पर हम टीएस ड्रॉ कर रहे हैं, तो टीएस में जो है ना बेटा आपको एक फॉल्स सेप्टम दिखेगा लाइक दिस, ठीक है। ये 2 कार्पल हो गए, और ओव्यूल्स जो है वो पेरीफेरी पे होंगे, ना कि एक्सिस पे। तो कुछ इस तरह से आपको टीएस दिखेगा, और मदर एक्सिस जहाँ जो है मेन ब्रांच है, जहाँ ये फ्लावर है। तो ये फ्लोरल डायग्राम है ब्रासिकेसी का। फ्लोरल डायग्राम पहले भी मेंशन किया गया था। आप कैसे पहचान सकते हैं? यहाँ 6 स्टेमन है, टेट्राडाइनमस कंडीशन। पेटल 4 हैं, 4 के मल्टीपल में टेट्रामेरस फ्लावर होते हैं। जब भी कैलेक्स कोरोला या एंड्रोशियम मेनली वो 4 के मल्टीपल में हो, तो फ्लावर जो है वो टेट्रामेरस कहलाता है। डायकॉट में पेंटामेरस और टेट्रामेरस 2 तरह के होते हैं। 3 के मल्टीपल में, 3 के मल्टीपल में यानी ट्राइमेरस फ्लावर मोनोकॉट्स का फीचर है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर बात करूं तो ऑल्दो मैं मेंबर्स बता चुका हूं। सो मोस्ट ऑफ आर वेजिटेबल्स लाइक टर्निप, शलगम एंड ब्रासिका ओलेरेसिया, बंद गोभी, ब्रासिका बुट्राइटस, फूल गोभी जिसे जनरली कॉलीफ्लावर कहते हैं, और मूली, रेफिनस सेटिवस, एंड ऑफ कोर्स ब्रासिका कैंपसिट्रिस, सरसों के और भी बहुत से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हैं। ऑयल यील्डिंग प्लांट है, वेजिटेबल की तरह भी काम करता है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट मेंबर्स। वन इज ऑर्नामेंटल, that is Iberis amara candida. So it was about the Brassicaceae. In the previous video I have discussed about the Fabiaceae. So for the remaining 3 families, Malvaceae, Astraceae and Poaceae, I'll be back in a few weeks. So you can check out all those families in a few days. Thank you very much. Have a nice day.